Hello everyone. This is your seventh chapter, The Raven and the Fox. This is a poem and also says a story of uh, a fox and the raven is a bird. Dear students, you have read or listened about the story of clever fox. How does the fox make fool a crow and gets the piece of bread from the crow? This is a poem written by Jean de La Fontaine, and Jean de La Fontaine was a famous French poet and writer of fables. Fables means imaginary stories, दंत कथाएं जिसे हम कहते हैं काल्पनिक कथाएं. His fables were inspired by many traditional stories like Aesop's fables and the Panchtantra. This is the poem is about a raven, and raven is a bird which we can say crow, जिसे हम crow पक्षी कह सकते हैं, sitting on the tree branch with a slice of cheese या a bite of bread in its beak. The fox who is sitting under the tree and smells the cheese or food and hatches a plan to get it from the raven. So dear students, what does the fox say to the raven? Let's start the poem. Mr. Raven was perched upon a limb. Perched means बैठा हुआ. Upon a limb. Limb is branch of a tree. किसी पेड़ की ब्रांच के ऊपर मिस्टर रेवन नाम का पक्षी बैठा हुआ है. एंड रेनार्ड द फॉक्स नेम इज मे बी रेनार्ड. द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम एंड द फॉक्स, what is the fox doing there? The fox is looking up at the raven bird. For the raven held in his great big beak, जो कि रेवन है जिसकी की एक बड़ी मजबूत चोंच है. बीक मीन्स चोंच. हेल्ड जिसने कि पकड़ रखा है अपनी बीक के अंदर. अ मोर्सल फूड, a bite of food. The fox would go far to 6. अब जो फॉक्स है वो कहाँ तक जा सकता है? टू सीक, उसको प्राप्त करने के लिए. अ मोर्सल, उस अ बाइट ऑफ फूड को प्राप्त करने के लिए. व्हाट ट्रिक्स द फॉक्स प्लेज अपॉन द रेवन बर्ड. लेट्स सी. Said the fox in admiring tones. The fox started the admire of the bird. Says in admiring tones, my word, Sir Raven. Sir Raven, he is using a word sir in respect. Raven पक्षी के respect में he is using, the fox is using sir. You are a handsome bird. You are a handsome bird. आप बहुत ही खूबसूरत पक्षी हैं. Such feathers and these feathers which is increasing handsomeness of you. ये जो feathers हैं, such feathers are increasing, बढ़ा रहे हैं, तुम्हारी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहे हैं. If you would ओनली सिंग, और एक काम और आप कर दे. इफ़ यू वुड ओनली सिंग, थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं कि गाना और गा सकते हैं. इफ़ यू वुड ओनली सिंग, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग. तो इस जंगल की, वुड्स मीन्स हियर फॉरेस्ट, जंगल की जितने भी बर्ड्स हैं, दे विल कॉल यू किंग. वो तुम्हें
राजा कहना भी स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ हैंडसम बर्ड। एंड इफ़ यू वुड ओनली स्टार्ट सिंगिंग, यदि गाना और गा दो तो द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, जिसे दिखाई नहीं दिया जोक, इस मजाक, जो मजाक की जा रही थी उसके साथ। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट, भूल गया इस बात को। ही फॉरगॉट, रेवन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, उसकी जो बोलने की जो भाषा है, उसकी जो वाणी है, जस्ट अ क्रॉक, रॉकस, कर्कस, क्रॉक मीन्स कर्कस, बड़ी ही कड़वी है। एंड in admiring, after hearing the words of admiration, the raven forgot that his voice was just a croak. And the raven who wanted to show off, जो दिखाना चाहता था, show off, जो अपने घमंड से दम से भर गया था, opens it big, he opened his beak in his foolish pride, अपनी झूठी मूर्खतापूर्ण घमंड के कारण या उसकी प्रशंसा के अंदर, ही ओपनड हिज बिग, उसने अपनी चोंच को खोल दिया, टू सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाने के लिए। इट ओपन्स टू सिंग ओनली टू लेट द स्लाइस ऑफ चीज फॉल इन टू द वेटिंग फॉक्स माउथ, एंड डाउन फेल द मोर्सल, वो जो पीस ऑफ बाइट ऑफ फूड जो था, टू लेट, उसे जाने दिया, द स्लाइस ऑफ चीज फॉल इन टू द वेटिंग फॉक्स माउथ, जो वहाँ नीचे बैठा हुआ जो फॉक्स है, वो रेनार्ड नाम का जो फॉक्स बैठा हुआ है, उसके मुंह के अंदर जाने दिया। लेट द स्लाइस ऑफ फूड फॉल इन टू द वेटिंग फॉक्स माउथ, वो सीधा वो उसके जो पीस ऑफ ब्रेड है वो सीधा जाकर उसके मुंह में गिरता है। Ha ha, said the fox, and now you see you should not listen to flattery. Ha ha, said the fox, because the fox was clear in his goal. He got the piece of food. So, ha ha, he was very happy. And now you see you should not listen to flattery. Flattery means चापलूसी word. Flattery, प्रेज और स्मूथ टॉक, किसी की प्रशंसा करना, झूठी झूठी प्रशंसा करना, फ्लैटरी। वेनिटी, घमंड, सर इज अ हॉरिड वॉइस, आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ द प्राइज, मुझे इस बात का, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, जो सबक तुम्हें मिला है, द वर्थ द प्राइज, जिसकी कीमत तुमने चुकाई हो, तुम उसके योग्य हो। सो द फॉक्स डिपार्ट्स विथ अ वर्ड टू एडवाइस टू द रेवन, यहाँ पर जाने से पहले जैसे वो रवाना होता है, द फॉक्स डिपार्ट्स विथ अ वर्ड ऑफ एडवाइस, वो सलाह दे के जाता है, टू द रेवन, रेवन को, डैट लिसनिंग टू फ्लैटरर्स इज नॉट वर्थ द फूड यू होल्ड इन योर बीक, चापलूसी सुनने के जो वर्ड्स थे, इज़ नॉट वर्थ, वो उसके सामने कोई मायने नहीं रख रहे थे, जो चीज़, जो फूड यू होल्ड इन योर बीक, जो तुमने अपने मुंह में ले रखा था, अपनी चोंच में पकड़ रखा था, उसके आगे ये जो लिसनिंग टू फ्लैटरर्स, चापलूसियों को सुनना, वो तुम्हारे लिए उसके सामने कोई भी मायने नहीं रखता है। सो डियर स्टूडेंट्स, द लेसन of this poem was that we should never listen to or believe in flattery, हमें न तो उनको सुनना चाहिए, ना ही चापलूसी के अंदर विश्वास करना चाहिए। द प्राइज वॉज डेट रेवन लॉस्ट हिज मोर्सल, और उसकी कीमत उसको क्या चुकानी पड़ी, ही रेवन लॉस्ट हिज मोर्सल। So this is a short poem written by Jean de La Fontaine. Dear students,
You will write down hard words in your notebook and explanation and activities, comprehension question answers in your notebook.